اللہ وبرکاتہ. آواز پراپرلی سب کو آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ بارک اللہ. ٹھیک ہے. ہاں ایک آدھ منٹ اور ویٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ. آج کیا پڑھنا ہے؟ درس لغہ پڑھنا ہے نا؟ شروع کیا جائے. دیکھیں اب کلاس ایک دم ٹائملی شروع ہوں گی, ایک بات یاد رکھیں آپ لوگ, اور مشکل سے 30 سے 35 منٹ کے بیچ ہی ہوں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ میں یہاں آ گیا ہوں, مجھے اپنی پڑھائی ہے, مجھے اپنی مشغولیات ہیں, تو انشاءاللہ باقی آپ لوگ وہ کوشش کرتے رہیں. ایک آپ کو آج بنیادی اصول بتا رہا ہوں میں. انسان کسی بھی فیلڈ میں کب کامیاب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے استاذ کی بتائی ہوئی باتوں کو صرف اور صرف اپنے لیے ایک رہنمائی سمجھتا ہے, اور اس رہنمائی پر اسے اپنی بنیاد بنا کر کے آگے جب بڑھتا ہے, تب وہ کامیاب ہوتا ہے. دنیا میں اسٹوڈنٹ یعنی طالب علم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو صرف اس بات پر اکتفا کرتے ہیں, اکتفا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی پر رہ جاتے ہیں کہ استاد نے جو کچھ بھی کلاس میں سکھایا بس وہی ہمارے لیے انف ہے, کافی ہے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو استاد سے کلاس میں جو سیکھتے ہیں اس کو اپنی بنیاد بنا کر کے اسی پر آگے بڑھنے کی مزید کوشش کرتے ہیں, اور یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں, دنیا میں اپنا نام بھی بناتے ہیں. تاریخ سے لے کے اب تک کہیں بھی آپ استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہوگا اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک بات بہت صاف ملے گی کہ استاد صرف راستہ دکھاتا ہے. اس راستے پر چل کے کسی بھی چیز کو کتنا حاصل کرنا ہے, 10%, 20%, 30%, 50%, یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہی بات میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری بتائی ہوئی چیزیں آپ کو فائدہ دے رہی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, الحمدللہ میں خوش بھی ہوں. اور اگر آپ لوگ صرف اتنی ہی چیزوں کو پڑھیں گی یا اتنی ہی چیزوں پہ غور کریں گی جتنا میں نے بتایا ہے, تو آپ کے علم میں کبھی بھی اضافہ نہیں ہوگا, اور آپ ہمیشہ ایک ٹیچر کے محتاج رہیں گے. ایک بہت مشہور کہاوت ہے عربی زبان میں, لا تعطینی السمک علمنی کیف اصطاد, کہ مجھے مچھلی مت دیجیے, میں آپ کو ایک ایک مچھلی ڈیلی پکڑ کے دے دوں اور کہوں کہ ہاں آپ لوگ کے لیے کافی ہے, تو عقلمند انسان مچھلیوں پر اکتفا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ مجھے مچھلی نہ دیں, مجھے یہ بتائیں کہ شکار کیسے کیا جاتا ہے, تاکہ میں اپنے من مطابق 1, 2, 10, 20, 50 مچھلیوں کا شکار کر سکوں اور اس سے فائدہ اٹھا سکوں. تو آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے, ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ صرف اسی فیلڈ کی بات نہیں کر رہا, میں ہر فیلڈ کی بات کر رہا ہوں. جس فیلڈ میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جس فیلڈ میں آپ اپنا نام بنانا چاہتے ہیں, یا جس چیز میں بھی آپ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ استاذ کے بتائے ہوئے طریقے پر اسے اپنا بیس بنائیں اور اس بیس پر آگے بڑھنے کی خود کوشش کریں. یاد رکھیں یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کو صرف اتنا ہی ملے گا جتنے کی آپ نے خود اکیلے کوشش کی ہے. جتنے کی آپ نے خود اکیلے کوشش کی ہے وہی آپ کا ہے. استاذ کا بتایا ہوا آپ کے پاس بہت زیادہ محفوظ ہوگا تو 10%, 20% ہوگا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ استاد آپ کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے, صحیح راستہ بتانے کے لیے. جہاں آپ پھسلتے ہیں, جہاں آپ سے کمیاں ہوتی ہیں, جہاں آپ سے کوتاہیاں ہوتی ہیں, اور انہی رہنمائیوں کے بل پر آپ آگے چل کے ایک اچھے اسکالر, ایک اچھے رائٹر, ایک اچھے اسپیکر, جو کچھ بھی بننا ہوتا ہے بنتے ہیں. میری بات سب کو کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. جی ہاں, تو میرے بتائے ہوئے علم کو آپ لوگ بنیاد بنائیے گا ہمیشہ. اس کو اپنے لیے کافی کبھی مت سمجھیے گا. جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے لیے علم کافی ہے, اس نے اتنا علم حاصل کر لیا کہ بس اب کافی ہے, وہیں سے اس کے علم میں زوال پیدا ہوتا ہے, کمزوری پیدا ہوتی ہے, یہاں تک کہ وہ زیرو ہو جاتا ہے. میں اب چونکہ یہاں آ گیا ہوں تو کلاس تو پراپر نہیں ہوگی انشاءاللہ, پر چونکہ میرے اپنی مشغولیات ہیں تو میں آپ کو بیسک چیزیں ہمیشہ بتاتے رہوں گا, جو ضروری چیزیں ہیں جس کو آپ بنیاد بنا کر کے آپ عربی میں آگے بہت بڑھ سکتے ہیں. شروع کیا جائے. تمام لوگ آ گئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں جس چیز کو آپ جتنا وقت دیں گے اس چیز میں آپ اتنے ہی ایکسپرٹ ہوں گے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چند دنوں میں ہم ایکسپرٹ ہو جائیں ایسا کبھی نہیں ہوتا دنیا میں جتنے بھی آپ کو بڑے نام کسی بھی فیلڈ میں مل رہے ہیں نا وہ اس فیلڈ میں ایک لمبا وقت دیتے ہیں 2 سال 2.5 سال 3 سال 5 سال 10 سال تب جا کر کے وہ اس کا ایکسپرٹ بنتے ہیں آج اگر عربی زبان مجھے اتنی اچھی آ رہی ہے تو یہ 1 2 دن کا کام نہیں ہے اور نہ ہی 1 2 سال کا معاملہ ہے میں نے اپنی زندگی کے 10 سال اس میں دیے ہیں تو آج مجھے عربی زبان بہت ہلکی معلوم ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو بھی یہی کرنا ہے کہ اگر آپ کو ایکسپرٹ بننا ہے تو 1 دن میں آپ نہیں بن سکتے نہ کوئی بنا سکتا ہے اور نہ ہی 1 مہینے میں اور نہ ہی 1 سال میں ہاں کچھ بیسک چیزیں آپ کو ضرور کلیئر ہوں گی پھر جیسے جیسے دھیرے دھیرے آپ آگے بڑھو گے ساری چیزیں آپ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی چلے پڑھیں کون پڑھے گا پڑھیں ٹھیک ہے پہلے زہرا پڑھ لیں پھر اس کے بعد شفا اور فاطمہ پڑھیں گی اچھا لگا یہ کہ آپ لوگ اپنی طرف سے پہل کر رہی ہیں پڑھنے کے لیے اور جب بھی کہا جائے کوئی نہ کوئی تیار رہے اسی کے علم میں اضافہ ہوگا پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوگا چلیں انا بخیر وہ بخیرن ہے تصدیق کے ساتھ ہے وہ ڈبل زیر ہے وہ انا من الریاضی انا من الریاضی مسمک مسمکی مسمکی اسکرین آپ شیئر کیجئے یہاں پہ ہم لوگ کو نہیں دکھ رہا سب کو دکھ رہا ہے اسکرین شاید نیچے کا نہیں دکھ رہا ہاں نیچے ادھر نہیں دکھ رہا ہے ابھی بھی نہیں ہاں اب صحیح ہے چلیں ہاں آواز آ رہی ہے وجہ وجہ ثانویتی
गार्ड भी कह सकते हैं, हाँ हाँ. कोई और पढ़े, शफक फातिमा पढ़े. जी शेख. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वअैन अम्मुकी, और तुम्हारी अम्मी, उम्मुकी, और तुम्हारी अम्मी कहाँ है? हिया ऐज़न हना, ये तबीबत, होना हुना हिया तबीबतु फी هي طبيبة في مستشفى الولادة. मुस्तशफल वलादती. वअैन उम्मुकी, और तुम्हारी माँ कहाँ है? हिय ऐदन होना, यानी वो भी वहीं पर है, यानी मदीने में है. जी. हिय, और वो क्या है? डॉक्टर है. किसमें डॉक्टर है? विलादत वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर है, जहाँ बच्चों की विलादत होती है जिस हॉस्पिटल में, उसमें वो डॉक्टर है. जी. वमन हाज़िही अल-फतातुल्लती माअकी. अल-फतातुल्लती माअकी. और ये जो लड़की तुम्हारे साथ है. नौजवान लड़की, फतात के मन नौजवान होता है. अच्छा. नौजवान लड़की जो तुम्हारे साथ है. अहिया, ये कौन है? अहिया अख्तुकी. उख्तुकी. उख्तुकी. हाँ, क्या ये तुम्हारी बहन है? या हिया बिन्तु उम्मी. नहीं. अम्मी. अम्मी. ये मेरी चचा की बेटी है. कोई और पढ़े. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मस्मुहा, उसका नाम क्या है? इस्मुहा फातिमतु, उसका नाम फातिमा है. अहिया ज़मीलतु की, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? आगे कीजिए. ला अना फिल मदरसतिल मुतवस्सितती वहिया फिल मदरसतिस सानविय्यती. शेख, मुतवस्सिता का माना? वही हाई स्कूल होता है, और सानविया का मतलब इंटरमीडिएट होता है. जी शेख. मुतवस्सिता के माने होते हैं वही बीच वाली. बीच, मुतवस्सित का मतलब बीच होता है, यानी ये हाई स्कूल में है और मैं इंटरमीडिएट में हूँ, यानी वो 10th क्लास में है और मैं 12th में हूँ. जी. ला नहीं, अना फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, नहीं मैं 10th क्लास में हूँ. वही फिल मदरसतिस सानविय्यती, और ये इंटरमीडिएट में है. अलकी उख्तुन, क्या तुम्हारी कोई बहन है? ला मा ली उख्तुन, नहीं मेरी कोई बहन नहीं है. अलकी अखुन, क्या तुम्हारा कोई भाई है? नाम ली अखुन कबीरुन, हाँ मेरा एक बड़ा भाई है. वो तालिबुन बिल जामिया, और वो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है. वमन कोई और पढ़े. कोई और पढ़े. नहीं पढ़ पाएंगे. पढ़िए. बहुत सारे लोग नहीं आए, क्या बात है क्लास में? पहले बहुत सारे लोग सब नहीं आ रहे हैं. चलें. ला माली उख्ती, नहीं ये नहीं मेरी कोई बहन नहीं है. अलका अखुन, क्या कोई भाई है? नाम ली अखु कबीर वहुवा तालिब. ली अखुन कबीरुन वहुवा तालिब बिल जामिअती.
لي أخ كبير وهو طالب 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 بجامعة بالجامعة بالجامعة. हाँ मेरा एक बड़ा भाई है और वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है. हाँ बिल्कुल. देखिए जब लोग पढ़े ना तो सब लोग ध्यान से सुना करें, क्योंकि सुनने से चीजें क्लियर हो जाती हैं, दोबारा पढ़ने में आप लोग के लिए आसानी होती है. इंसान किसी चीज को रटने से ज्यादा सुनने से याद कर लेता है. सुनी हुई चीजें अगर बार बार कोई भी बात सुनी जाए तो ज्यादा याद होती है, ज्यादा महफूज रहती है बमुकाबिल इसके कि कोई रटे. आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ जो मिंबरों पर खुतबा होता है जुमा के दिन, उसमें सूरकात की तिलावत होती है, और सूरकात की जहां तक तिलावत होती है वो याद करने या कराने की जरूरत नहीं होती है, सुनते 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 ऑटोमेटिक याद हो जाता है. आप लोगों ने इस बात को महसूस किया है? जी शायद. बस वही बात है. इसीलिए आप लोग में से हर इंसान को जरूरी है कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो मैं कहता हूँ कि फला पढ़े, तो दूसरे लोग गौर से सुना करें, ताकि जो मैं इस्लाह कराता हूँ किरात के दरमियान, पढ़ाने के दरमियान कौन सा लफ्ज कैसे पढ़ना है वो आप सबके लिए भी क्लियर होता रहे. अपनी बारी का इंतजार ना करें, हर आदमी गौर से सुना करे. ठीक है? जी सर. हाँ चले पढ़े आगे पढ़े. जी. वमन वमन हा तिफलु वमन हारत लुल्लज़ी माकी. और ये बच्चा जो तुम्हारे साथ है, और ये बच्चा जो तुम्हारे साथ है, ये कौन है? हुआ इब्नु अखी. अखी. ये मेरे भाई का बेटा है. हुआ ये मेरे भाई का बेटा है. वो मेरे भाई का बेटा है. जी. चले आगे. वो मेरे माँ इस्मुहु. इसका नाम क्या है? अस्मुहु सादिन. इस्मुहु. जी. उसका नाम क्या है? बस रहने दे, कोई और पढ़े. कोई और पढ़े. रहीम. अम्मुकी फिल बैतिल आन. और तुम्हारी अम्मी अभी क्या तुम्हारी अम्मी अभी घर में है? ला ज़हबत इलल मुस्तशफी. नहीं वह हॉस्पिटल की तरफ गई है. कैफ हालुका या अबी. तुम्हारा हाल कैसा है ए मेरे अब्बू. इधर नहीं दिख रहा है 2 नंबर. कैफ हालुका या उम्मी. तुम्हारा हाल कैसा है, आपका हाल कैसा है ए मेरी अम्मी. ऐना इब्नुका या ज़ैनबु. क्या तुम्हारा बेटा कहाँ है ए ज़ैनब. ज़हबा इलल मस्जिदी. वह मस्जिद की तरफ गया. ऐना बिन्तुका या आमिनतु. तुम्हारी बेटी कहाँ है ए आमना. ज़हबा बिन्तु की जहाँ भी काफ की जमीर है ना वहाँ जेर पढ़ना है. हो सकता है मैं ध्यान न दूं, मेरे कुछ फ्रेंड्स चल में आ गए थे मेरे रूम में अचानक, तो मैंने माइक ऑफ करके उन लोगों को बोलना शुरू किया कि भाई आप लोग अभी जाओ, मैं क्लास ले रहा हूँ. तो मुमकिन है मैं सुना ना हूँ, ध्यान न दे पाया हूँ. जैसे कई पहाड़ों का यहाँ पे ठीक है, लेकिन ऐन इब्नुकी या ज़ैनबु.
वैसे पढ़ना है. जहाँ फीमेल है वहां पर काफ के नीचे जेर पढ़ना है. ठीक है, मुमकिन है मैं ध्यान न दे पाया हूँ. चलिए आगे पढ़े. शेख अचानक मेरे फ्रेंड्स आ गए थे रूम में मेरे. हाँ आइना चले. बिंतुकी या आमिनतु, हम्म, तुम्हारी बेटी कहाँ है ए आमना? ज़हबत इलल मदरसती, वह मदरसे की तरफ गई है. बस लिमन रहने दे. जज़ाकल्लाहु खैर. इससे पहले आपने अरबी पढ़ी है साबिया परवीन, नहीं नहीं शेख. और इतना अच्छा पढ़ ले रही है माशाल्लाह. तब तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग पढ़ाने में कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह. जिसने जी अरबी शेख. नहीं पढ़ी है पहले, लेकिन हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप न सिर्फ पढ़ पा रही हैं अच्छे से, बल्कि तर्जुमा भी कर रही है. ये बहुत अच्छी बात है. यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है वो मदरसा नहीं है. हाँ? नहीं शेख, नहीं शेख. अरे वाह माशाल्लाह, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह. इसका मतलब ये है कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हूँ. बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई. इतना बेहतरीन आपने पढ़ा, अल्लाह आपको मज़ीद बरकत दे. बहुत अच्छा लगा मुझे. चलिए कोई और पढ़े. अच्छी बात इसलिए मैंने ये पूछा पहले कि हाँ आपने पहले कहीं अरबी पढ़ी है कि नहीं. मुमकिन है कि कहीं और से भी आपने सीखा हो, लेकिन अगर आपने कहीं और से नहीं सीखा है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है. इसलिए क्योंकि छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके पढ़ लेना अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह. चले कोशिश करें आप लोग भी. फायका आप पढ़िए जरा. आप हैं फायका? सर मैं अगली बार इंशाल्लाह पढ़ूंगी, आज नहीं. ओके ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं. आप लेकिन कोशिश किया करें सब लोग. कौन है और? बुशरा आप पढ़े. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम तो बरकातुहू. लिमन हाजी सातिल जामिलिया, ये खूबसूरत घड़ी लिमन किसकी? हाज़िही सा. आप लोग एराब क्लियर पढ़ा करें. एराब का मतलब ये है कि जो आखिर में जबर से पेश है, यही से आप लोग सीखेंगी. लिमन हाज़िही साअतुल जमीलतु, ऐसे पढ़ा करें. हाँ, आपने जो पढ़ा वो भी तरीका सही है, लेकिन ऐसे अरबी में आप लोग इबारत यानी कहाँ जेर पढ़ना है, कहाँ जबर पढ़ना है, वो कभी नहीं सीख पाएंगी. इसलिए हर चीज को क्लियर पढ़िएगा सारे लोग. ठीक है, चलें. लिमन हाजी सातुल जमील जमील जमीली अल जमीलतु, अल जमीला, ये खूबसूरत घड़ी किसकी है? अहिया लकिया फातिमा तू, क्या ये फातिमा की है? नाम हिया ली, लकी या फातिमा, क्या ये तुम्हारी है? अहिया लकी यानी ये घड़ी लकी तुम्हारी है या फातिमा तो है फातिमा. ठीक है, चलिए. नाम हिया ली, हाँ ये मेरी है. माशाल्लाह बारकल्लाह. चलिए आगे पढ़ें. अहाजा कलमों का या मोहम्मद, क्या कलम ये का, कलम का कलम का? या मोहम्मद. ठीक है, चलिए. अहाजा कलम का या मोहम्मद, क्या ये कलम तुम्हारी है ए मोहम्मद? ला हाजा कलम का अंता, नहीं ये कलम तुम्हारी है. माशाल्लाह, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. चलें आगे बढ़ें. तिलका सय्यारतु अल जमीलिया अल्लती अल खरजत जमीलत, तिल्का सय्यारतुल जमीलतुल लती खरजत आन मिन अल मदरसति लिल मुदीरी. अच्छा, एक जो तर्जुमा आपने किया, हादा, एक मिनट, हादा कलमुका अंता, ये तुम्हारी ही कलम है, यानी माने में और जोर पैदा होगा. अगर अंता नहीं होता तो हादा कलमुका कहते कि तुम्हारी कलम है, लेकिन अंता एक्स्ट्रा जमीर लेकर के आए हैं. जहां एक्स्ट्रा जमीर आती है ना, एक जमीर के अलावा, जहां पर एक जमीर से काम चल जाता है, एक प्रोनाउन से काम चल जाता है, लेकिन उसके अलावा भी दोबारा एक्स्ट्रा प्रोनाउन जिक्र करते हैं, तो वहां पर माने में ताकीद पैदा होती है. ताकीद का मतलब होता है कि उसमें माना और बढ़ जाता है. जैसे सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इय्याका ये भी एक वो है, प्रोनाउन है. नाबुदु में वो माना अदा हो जाता है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन तर्जुमा क्या करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं. वो वही एक्स्ट्रा जो जमीर आई हुई है ना, उसी की वजह से. वैसे ही यहाँ पर भी जब एक्स्ट्रा जमीर कहीं भी जिक्र होगी ना, तो माने में
क्या होता है? ताकीद पैदा। ताकीद बोलते हैं अरबी लफ्ज में, उर्दू लफ्ज में, यानी तेरे लिए, तुम्हारी ही है, तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं है। जैसे हम सूरह फातिहा में कहते हैं कि अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, यानी तेरे अलावा किसी की नहीं करते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी आदा कलमु का अंत, ये तुम्हारी ही कलम है। ठीक है, एक नई चीज आप लोग को सीखने को मिली, सबको मेरा ख्याल है। माने में जोर का मतलब ये होता है कि ताकीदी माना होता है। ताकीदी माने का मतलब होता है जैसे सिर्फ ये कहा जाए ला हादा कलम का, ये तुम्हारा कलम है, नहीं ये तुम्हारा कलम है, तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन एक्स्ट्रा जमीर अंता आया हुआ है तो हम तर्जुमा कर रहे हैं कि ये तुम्हारी ही कलम है। जब हमने ये कहा कि ये तुम्हारी ही कलम है, यानी तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं है। ठीक है, तो ये माने में ताकीद पैदा होता है। समझ में आई ये बात? जी जी सर। चलें आगे पढ़ें। तिलका सय्यारतु अल-जमीलतुल्लती खरजत अल-आना मिनल मदरसतिल मुदीरी, वो खूबसूरत गाड़ी जो अभी मदरसे से निकली है, वो प्रिंसिपल की। बिल्कुल बिल्कुल सही। अंता मुहंदिसु या अखी, क्या आप इंजीनियर हैं? क्या आप इंजीनियर हैं या अखी, मेरे भाई? आए मेरे भाई, हाँ आए मेरे भाई, आप इंजीनियर हैं। जी। ठीक है, चलें। अंता मुहंदिसु या अखी, ऐ मेरे भाई क्या आप इंजीनियर हैं? ला अना तबीबुन, नहीं मैं डॉक्टर हूँ। अंती तबीबतु या उख्ती, क्या आप डॉक्टर हो मेरी बहन? ला अना मदरसत ला अना मुदर्रिसतु, मुदर्रिसतुन, नहीं अना मैं क्या हूँ? टीचर हूँ। मुदर्रिसतु। माशाल्लाह, आपने पहले कहीं अरबी पढ़ी है? नहीं शेख, कहीं पढ़ी आपने इससे पहले, हमसे पहले? बस थोड़ा सा पढ़ा है। ये रीडिंग वगैरह नहीं सीखी थी, बस कुछ ग्रामर के रूल सीखे थे। अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं, माशाल्लाह आप भी अच्छा कर ले रही हैं, बहुत अच्छी बात है। सब लोग अच्छा कर रहे हैं और खुशी होती है जब इंसान मेहनत करता है ना। जैसे मैं आप लोगों को जो टाइम देता हूँ, ये मेरी मेहनत ही है। इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा ना अपनी मेहनत के फल पे खुश होता है। जब उसे ये दिखता है ना कि वो जो मेहनत कर रहा है उसका कुछ नतीजा उसके सामने है, दुनिया में इंसान इससे ज्यादा किसी भी चीज से खुश नहीं होता। चाहे वो मेहनत छोटी हो बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मुझे इत्मीनान है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले थोड़ा सा डाउट में रहता था कि यार मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, पता नहीं वो लोग अपनी फी भी पेमेंट करते रहते हैं और टाइम भी देते हैं, उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम इतना मैं खुश हूँ और मुतमईन हूँ कि मैं बस अल्लाह ही जानता है मेरा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हुआ है आप लोग को। आप लोग खुद से पढ़ ले रहे हो, खुद से तर्जुमा कर ले रहे हो, खुद से सारी चीजों को आप लोग कर ले रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और ये हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं फातिमा और शफक, ये लोग, इनमें भी काफी इम्प्रूवमेंट आई है माशाअल्लाह। बहुत अच्छा लगा मुझे, वल्लाही बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आप लोग को दुनिया और आखिरत में से ही कामयाब करे। देखिए हमेशा याद रखिए, कोशिश ही का नतीजा इंसान को मिलता है। मैंने स्टार्टिंग में क्या आप लोगों से कहा था, और इसे आप गांठ बांधे। गांठ बांधने का मतलब है कि लाइफ में कभी भी इस बात को कभी मत भूलिएगा, जो कुछ आप खुद से हासिल करोगे वही आपका है। जो कुछ भी आप खुद से हासिल करोगे वही आपका है। बाहरी इंसान सिर्फ आपको सपोर्ट दे सकता है। एक छोटा बच्चा उसको चलना कैसे सिखाया जाता है? बस उसको सपोर्ट दिया जाता है। बाकी अपने पैरों पर खड़े होकर के चलना, गिरना, चलना गिरना, यहाँ तक कि परफेक्टली चलना बच्चा खुद ही सीखता है। तो इस मामले में अभी ये छोटे बच्चे की मिसाल इसलिए मैंने दी क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो ना, इसीलिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत इत्मीनान है, और खास करके जो सबने तकरीबन अच्छा किया, सबने अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। चले आगे पढ़े। क्या नाम है उनका? वसीम अंसारी, आपका नाम जो भी है, मैं नाम भूल जाता हूँ, सॉरी। आगे वाली मिसालें आप पढ़ें। अपनी 2 नंबर पढ़िए।
आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज कट रही है। सबको उनकी आवाज प्रॉपरली आ रही है या मुझे सिर्फ नहीं आ रही? कट रही है शेख, हाँ, कट रही है शेख। अच्छा 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 अच्छा, कोई मसला नहीं, हो सकता उनके यहाँ कोई नेटवर्क इशू हो, कोई मसला नहीं है। वो है ना क्लास में भी। मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ आप लोग को। वसीम आप रुक जाए जरा, क्या नाम है आपका? आपका से आवाज भी प्रॉब्लम उसकी आ रही है। इस चैप्टर में आप लोगों ने गौर किया, इस चैप्टर में ये आपको मुखातब की ज़मीर, यानी आप किसी से सामने कोई है, आप उससे बात कर रहे हैं, जब वो फीमेल हो तो आपको कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, वही सिखा रहे हैं। आईना कलमों के या आईना कलमों की या फातिमा या उम्मी। तो अगर मेल है तो कलमों का, और फीमेल है तो कलमों की, यानी काफ के नीचे जेर पढ़ना, आपको लिखना भी और पढ़ना भी है। ठीक है, बेसिक जो इस चैप्टर का वो मकसद है वो यही है कि मेल और फीमेल के लिए मुखातब की ज़मीर, यानी जो सामने आपके है उसके लिए कैसे आप यूज करोगे। मेल है तो कलमों का, और अगर फीमेल है तो कलमों की। इसमें मेन मकसद यही है इसका पढ़ाने का। इस चैप्टर का खुलासा जो है, निचोड़ है, वो यही है। क्लियर है सबको? जी कोई ऐसा जो समझ में ना आया हो? फायका आपको समझ में आया? जी शेख समझ आ रहा है, पिछली क्लासेस छूट गई थी, अब इसको कंप्लीट कर लूंगी। हाँ इंशाल्लाह से कंप्लीट कर लीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा बताइएगा, क्लासेस छोड़े नहीं। देखें, बुनियादी उसूल ये है ना, हम लोग भी पढ़ते हैं, अभी मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ और आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं। बुनियादी उसूल ये है तालीम का ना कि क्लास कभी भी मिस ना किया जाए, क्योंकि क्लास मिस करने से ना बहुत इंसान पीछे हो जाता है। और फिर क्लास के दौरान उस्ताद कब कोई ऐसी बात बता दे, सबके लिए मैं कर रहा हूँ, सिर्फ आयता के लिए नहीं, मैं सबके लिए बता रहा हूँ। उस्ताद क्लास के दरमियान कब कोई ऐसी बातें बता देगा जो आपको 1000 किताबों में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि उस्ताद एक चीजें पढ़ के आता नहीं है, एक किताब को पढ़ के आता नहीं है वो, और उससे पहले भी उसके पास काफी एक्सपीरियंस होते हैं, काफी किताब को पढ़ चुका होता है। तो कब वो आपको कौन सी पॉइंट की बात बताएगा आपको बाद में समझ में आएगा, या वो हो सकता है आप मिस कर लें। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया कि जब एक्स्ट्रा प्रोनाउन आता है, ज़मीरें आती हैं, तो माने में ताकीद पैदा करती है, माने में और गहराई पैदा करती है। तो ये चीजें आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप खुद जब अरबी ग्रामर पढ़ोगे तो मतलब जो भी हो 6 महीना साल भर बाद आपको ये चीजें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर सामने मौजूद था तो मैंने आप लोग को बता दिया। ऐसे ही होता है, इसलिए कभी क्लास मिस ना करें, समझ में आए ना आए। नहीं समझ में आएगा आप उस क्लास से पूछे कि ये बात समझ में नहीं आ रही है, सब पूछें, क्योंकि इसीलिए सब कुछ आप लोगों ने किया है। मैंने जो फी रखी है, आप जो फी की पेमेंट कर रहे हैं, वो इसीलिए है कि उस्ताद आपकी सही तरीके से प्रॉपरली आपकी रहनुमाई करे। आ गई वो, क्या नाम है, वसीम अंसारी? जी शेख। हाँ माशाल्लाह, आवाज क्लियर है। चलें, इकरा कुल्लुल जमल जुमलते मिनल जुमलिल आतियते। इकरा 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 कुल्ल जुमलतिन इकरा मिनल जुमलिल आतिया। इकरा कुल्ल जुमलतिन मिनल जुमलिल आतियति सुम्मा इकरा मर्रत उखरिया सुम्मा क़रअहा उख़रा बाद तग़यीरिल मुनादा कमा हुआ मुवज़्ज़ह फिल मिसाल। ये इबारत मैंने कैसे पढ़ी है, इसको सब लोग गौर से सुने। इक़रा कुल्ल जुमलतिन मिनल जुमलिल आतियति सुम्मा क़रअहा उख़रा बाद तग़यीरिल मुनादा कमा हुआ मुवज़्ज़ह फिल मिसाली। इस तरीके से आप लोग पढ़ने का तरीका भी आएगा। हेडिंग्स पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं, हेडिंग्स ही असल होते हैं। इक़रा कुल्ल जुमलतिन, हर जुमले को पढ़ो, मिनल जुमलिल आतिया, आने वाले जुमलों में से। जुमला वाहिद है और जुमल क्या है, उसकी जमा है। इक़रा कुल्ल जुमलतिन, जो जुमला लफ्ज है ये सिंगुलर है, वाहिद है, और उसके बाद मिनल जुमल जो आ रहा है, जुमल वही जुमला की जमा है, वो प्लूरल है उसकी। अल आतिया, आने वाली। उनको पहले आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सुम्मा क़रअहा उख़रा बाद तग़यीरिल मुनादा, फिर उसको कैसे पढ़ना है, मुनादा के चेंज करने के बाद। हर पे लफ्ज जो है, मुनादा किसे कहते हैं मालूम है?
नहीं शेख। जैसा कि मिसाल में है, जैसे या हरफ निदा होती है। हरफ निदा का मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसके जरिए किसी को पुकारा जाए, जैसे या अल्लाह हम बोलते हैं ना। तो इस लफ्ज में ग्रामर का रूल ये है कि या हरफ निदा है और अल्लाह मुनादा है। या जैद, या बकर, या उमर, या फातिमा, जो भी आप नाम ले रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, सामने वाले को पुकार रहे हैं, तो या हरफ निदा है और उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है या लफ्ज होता है वो क्या होता है? मुनादा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुनादा। क्लियर है? सबको क्लियर है? जी शेख। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? फायका आपको समझ में आया? आपको आवाज आ रही है मेरी? फायका सेलेक्ट होगी शायद, या नेटवर्क इशू होगा। बुशरा आपको समझ में आया? जी शेख। चलें, अच्छी बात है। मिसाल दे रहे हैं, मिसालों को देखें। मिसाल, ऐन कलमुका या अबी, ऐ मेरे वालिद आपकी पेन कहाँ है? ठीक है, ये सवाल निशान है। ऐन कलमुका, कलमुकी या उम्मी, कलमुका नहीं होगा, कलमुकी होगा। ठीक है, ऐ मेरी वालिदा आपकी पेन कहाँ है। कभी कभी मिस टाइपिंग भी हो जाता है। इंदक कलमुन या मुहम्मदू, अब उसके बाद ये स्पेस दे करके पूछ रहे हैं या आमिनतु, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे? उससे पहले आप क्या लिखेंगे ये आप पर डिपेंड कर रहा है। ऊपर की मिसालों को एक बार फिर से देखें आप। ऐन कलमुका या अबी, ऐन कलमुका या उम्मी, इंदक कलमुन या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद क्या तुम्हारे पास पेन है? तो वहां पर कौन सा आप सेंटेंस लेकर के आएंगे जिससे बात पूरी हो जाएगी? किसी को समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करना है? शेख इसी को पढ़ना है, मुनादा को चेंज हाँ? करके यहाँ। शेख इसी सेंटेंस को पढ़ना है ना, सिर्फ मुनादा को चेंज करके, जैसे चेंज करके, आई हाँ हाँ, ही रखा लेकिन आगे या उम्मी मुनादा को चेंज कर दिया, तो ऐसे ही चेंज कर बनेगा दिया, ना। हाँ आइंदकी कलमुन या आमिनतु। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। सबको समझ में आ गया कैसे बनेगा? जी शेख। अच्छा, सबको समझ में आ गया कैसे बनेगा? एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए। ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है? ये कह रहे हैं कि बस आपको मुनादा चेंज करना है और सेंटेंस वैसे ही रहने देना है। ठीक है, पहला जुमले में सारी चीजें क्लियर है, उसी के हिसाब से आपको मुनादा चेंज करना है। ऐन कलमुका या अबी, ऐ मेरे वालिद साहब आपका पेन कहाँ है? तो यहाँ पर या अबी है और आगे या उम्मी कर दिया है, ऐन कलमुकी या उम्मी। उसी तरह इंदक कलमुन या मोहम्मद, तो इंदकी काफ के नीचे जेर, कलमुन या आमिनतु, ऐसे करके आपको पूरा बनाना है। ठीक है, कितने सेंटेंसेस है देखें जरा एक बार। 10 है। जी शेख। तो सब वो आप लोग बना करके कॉपी में ले आएंगे इंशाल्लाह। क्लियर है? जी शेख। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। फायका आपको समझ में आया था? तो मुनादा और वो क्या नाम है, हरफ निदा और मुनादा। शेख मैं रिजवान क्या बोलते हैं, नेटवर्क का भी दिक्कत थी, मैं चली गई। अच्छा, कोई मसला नहीं है। मैं अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि निदा और हरफ मुनादा क्या होता है। यहाँ पर एक लफ्ज गुजरा मुनादा, तो अरबी ग्रामर में मुनादा किसको कहते हैं? अरबी जबान में किसी को पुकारने के लिए लफ्ज या और इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड आते हैं, आगे आप सीखोगे। फिलहाल हम सिर्फ या से डिस्कस करते हैं। लफ्ज या इस्तेमाल किया जाता है, जैसे या अल्लाह, या फातिमा, या जैद, या बकर, या उमर। तो या हरफ निदा है। या क्या है? हरफ निदा है। ग्रामर के अकॉर्डिंग या क्या है? हरफ निदा है, और उसके बाद वाला जो वर्ड है उसी को हम मुनादा बोलते हैं। जैसे हमने कहा या बकरो या उमरो, तो ये क्या है? या हरफ निदा है और बकर और उमर क्या है? मुनादा है। ठीक है, ठीक है। होमवर्क ये है कि आने वाले सेंटेंसेस में जो खाली जगह है वहां पे
آپ کو مناسب سینٹینس لکھنا ہے. جیسے یہاں پر لکھا ہے عندک قلم یا محمد، اے محمد کیا تمہارے پاس پین ہے؟ اس کے بعد اسپیس دے کر کے انہوں نے یا آمینہ لکھا ہے. تو وہاں پر آپ کو منازع چینج کرتے ہوئے، سینٹینس چینج کرتے ہوئے عندکی قلم یا آمینہ تو ایسے لکھنا ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے شیخ، کوشش کریں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی ہم لوگ رہنے دیتے ہیں، کل پھر کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے؟ جی شیخ. اور آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ گروپ میں ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. گروپ اسی لیے بنایا گیا ہے، اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ کسی کا کوئی سوال یا کوئی چیز جو سمجھ میں نہ آیا ہو. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں مغرب کا وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ میں کل اسی ٹائم سے جوائن ہو جاؤں گا، یا دیکھا جائے گا اگر ہم لوگ اور کریں گے کوئی اور کسی اور ٹائم کلاس کرنا مناسب ہوگا تو اس پر بھی آپس میں بات کر لی جائے گی انشاءاللہ تعالی. چلیں ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.